So we are going to start with next chapter of statistics, that is collection of data. In the previous chapter, we studied that there are different stages of statistical study. First of them being collection of data. Okay, so whenever we have to start our survey, the first step in the statistical study is to collect the data. Now, there are two sources of collecting the data. One is a primary source of collecting data, and another is secondary source. So, what is the primary source of secondary data? Bete, when the data is collected from the source of origin, सोर्स ऑफ ओरिजिन का मतलब जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, that person is the source of origin, right? So whenever we collect the data from its source of origin, it is known as primary source of collection of data. Now this offers us first hand information, okay, for our statistical study, right? Now, another source of collecting data is secondary source. What is secondary source? Secondary source is the collection of data not from the source of origin, but from any agency or any institution which already happens to have collected the statistical data. So, that source of data is known as secondary data. आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ. If I want to know information about say your phone numbers, or from any other data I want from you people, your parents name I want your phone numbers, I want your height, I want your any marks in say pre-board, right? If I collect the information from you people, I am calling you one by one and I am asking you, बेटे आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे, एंड आई नोट इट डाउन. ठीक है, रोल नंबर 1 के इतने, रोल नंबर 2 के इतने, 3 के इतने, 4 के इतने. नाउ दिस सोर्स of collecting data is a primary source because I am collecting data जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं उससे डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, यानी आई एम कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. So obviously this kind of data is known as primary source. ठीक है, this source is primary source. The data which I would obtain would be known by the name of primary data. Right. Now there is another way out also. I do not call you one by one. I call your ex class in charge, और मैंने उनसे आपका सारी इंफॉर्मेशन उनके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई थी, रिजल्ट बना पड़ा था, तो उन्होंने मेरे को फोटो क्लिक करके भेज दी कि ये बेटे आप ये वही आपकी क्लास के मार्क्स आए थे प्री बोर्ड में. ठीक है, नाउ आई हैव ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन. ठीक है, लेकिन मैंने क्या आपसे ली? नहीं. मैंने किससे ली? मैंने किसी और थर्ड पर्सन से ले ली, एजेंसी या इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जिसने ये डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो जब हम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा यूज करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, और जो ये हमें डाटा आता है उस डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा. ठीक है, सो प्राइमरी डाटा, अगेन इफ वी need to explain primary data, but it is the data collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning till end. ठीक है, प्राइमरी डाटा क्या होता है? इट इज द डाटा which is collected by the investigator. Now you will come across certain terms in this chapter. One is investigator, another is enumerator, and still another is informant or respondent. So what are these better terms? Investigator, one who conducts the inquiry. Investigator is one who conducts the inquiry. In this case, I am the investigator because I am conducting the inquiry relating to your pre-board marks. ठीक है,
दैट एन्यूमरेटर कौन है? कई बारी तो इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट कर लेता है, लेकिन कई बारी जो साइज है पॉपुलेशन का वो काफी लार्ज होता है, तो एन्यूमरेटर अपॉइंट करता है। वो इन्यूमरेटर कौन होते हैं? ये वो पर्सन है जो कि इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेंट इज द वन फ्रॉम whom इंफॉर्मेशन इज टू बी obtained। इसको हम रिस्पोंडेंट भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू आर दी इंफॉर्मेंट। So primary data is the one beta which is collected by the investigator for his own purpose for the first time from beginning till end. So it's the data which is collected from source of origin. This gives you first hand information. प्राइमरी डाटा आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब ये इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन से ले रहे हो, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ये किसी ने आपको हैंड ओवर नहीं की है। ठीक है। जो हैंड ओवर करता है, जो इंफॉर्मेशन हैंड ओवर की जाती है आपको, उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। लेकिन जो डाटा आप खुद कलेक्ट करते हो, आप मतलब इन्वेस्टिगेटर। ठीक है। हेयर डाटा जो भी पर्सन बेटे डाटा कलेक्ट करना चाहता है, जिसका भी कोई पर्पस है, उसको हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। ठीक है। सो डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस। Here the data is collecting all the investigator is collecting all this data for his own purpose। उसका अपना कोई पर्पस है। ठीक है। उसके लिए वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो जब वो खुद कलेक्ट करता है, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट करता है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड कलेक्ट करता है, इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दी। मुझे आपकी क्लास का कोई डाटा चाहिए, मेरे को आपकी एवरेज हाइट निकालनी है, या एवरेज मार्क्स निकालने हैं, या एवरेज पॉकेट मनी निकालनी है। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन अगर मैं खुद कलेक्ट कर लेती हूँ, दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। This much is clear. Now let's move to secondary data. So beta secondary data are those which are already in existence. ये वो डाटा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। अब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कोई आसमान से टपक पड़ा। नो बेटा, इट हैज बीन कलेक्टेड फॉर some other person for his own purpose. Like I told you, मैंने आपसे वन बाय वन नहीं, रोल नंबर वाइज आपसे नहीं कलेक्ट किया डाटा, मैंने आपके क्लास इंचार्ज को कॉल कर लिया। अब आपके क्लास इंचार्ज ने ये जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है आपका, उस टाइम पे उन्होंने अपनी क्लास का रिजल्ट बनाने के लिए, पोजीशन निकालने के लिए ये डाटा कलेक्ट किया था। So for his own purpose, she had collected the data. Now I am using the data which has already been collected by her. So for me it becomes secondary data, क्योंकि ये मुझे कराया मिला है। ये किसी और पर्सन ने अपने पर्पस के लिए किसी और टाइम पे कलेक्ट किया था। ठीक है। जब उस पर्सन ने कलेक्ट किया था, यानी आपके जो भी क्लास इंचार्ज थे, रविंदर मैम थे, आदित्य सर थे, ठीक है, जो भी क्लास इंचार्ज आपके थे, उन्होंने जब ये डाटा कलेक्ट किया वो प्राइमरी डाटा था। ठीक है। लेकिन अब मैं अगर उनका कलेक्टेड डाटा यूज करती हूँ तो मेरे लिए ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। इज इट क्लियर? सो विच मीन्स सेम डाटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, इट डिपेंड्स ऑन दी यूजेज ऑफ इट। अगर आप किसी का कलेक्टेड डाटा यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी है, अगर आप खुद कलेक्ट कर रहे हो तो वो प्राइमरी है। ठीक है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन आप अगर न्यूज़पेपर से लेते हो, इंटरनेट से लेते हो, कोई जर्नल से लेते हो, मैगजीन से लेते हो, कोई बुलेटिन से लेते हो, ठीक है, all these are secondary data for you. Why? Because these have been collected by some other agencies or institutions for their own purpose of enquiry. This much is clear, bete?
Okay, so let's see what's the difference between primary and secondary data. Bete, first main difference between primary and secondary data, we can differentiate them on different bases. कोई भी दो concepts में जब भी हम difference create करते हैं तो different bases पर हम create कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम difference कर रहे हैं primary और secondary data में, first difference is different in terms of their originality. So, in terms of originality, can anybody tell me what is the difference between the two? Which one is original and which one is not original? Which of these two data, primary or secondary data, is original? Okay. प्राइमरी डाटा नहीं है बेटे, प्राइमरी है, ठीक है? प्राइमरी डाटा इज मोर ओरिजिनल because it is collected by the investigator from the source of origin, so which means this is original data, first hand information है. आपके मार्क्स में आपसे पूछूंगी, ऑब्वियसली ये डाटा ओरिजिनल है, ठीक है? On the other hand, secondary data, these are not original because they have been collected. Does secondary data mean to take out another information? I do not understand your question. Himanshu, just wait. I will be unmuting you. पहले ये complete कर लेने दो, ठीक है? Last में questions हम लेते हैं, doubts लेते हैं. So because these are already in existence, these are not original. Clear? All right. So next bit is difference in objective. प्राइमरी डाटा जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है फॉर हिज ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है. उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये वाला जो डाटा है प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें, क्योंकि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही ये डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो इस डाटा में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? तो अगर मैं आपसे मार्क्स को कॉल करके आपके बारे में मार्क्स आपसे पूछ रही हूँ, तो मेरे पास डाटा जो है वो अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है? मुझे पता है मैंने क्या इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है, मैं वही इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, ठीक है? सो आई एम obtaining the information, I am collecting the data to fulfill my specific objective. So in this case, no adjustment needs to be done. On the other hand, बेटे जो secondary data है, they have already been collected for their own purpose. ठीक है? ये जो डाटा है वो अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपके पास, मेरे पास जो +1 में स्टूडेंट्स आए हैं वो 4 सेक्शन से आए हैं, है ना? तो अगर मैं खुद आपको कॉल करके 40-50 स्टूडेंट्स को कॉल करके आपके एवरेज मार्क्स निकाल लूंगी तो मुझे उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने 4 क्लास इंचार्जेस 10th A, 10th B, 10th C, 10th D, इनसे इनका रिकॉर्ड मंगवाया प्री बोर्ड का, तो मुझे उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा. मुझे देखना पड़ेगा कौन से स्टूडेंट्स मेरे सेक्शन में हैं, कॉमर्स के सेक्शन में हैं, और कौन से नहीं हैं, ठीक है? तो मुझे उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके निकाल के फिर मेरे को इंफॉर्मेशन दोबारा से यूज करनी पड़ेगी, है ना? तो उसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. क्लियर बेटे? नाउ थर्ड डिफरेंस in cost of collection. So primary data, you tell me which one of two would involve more cost. कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव होगा? कौन सा डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा कॉस्ट आएगी?
No one? Okay, bete, primary, yes, of course, Isha. Primary data would involve more cost as the investigator is doing it on his own from the beginning till end. So obviously, he is going to meet all the informants, or he is calling them, or whatever method he is adopting. What are the different techniques of collecting primary data? This also we are going to discuss further. Okay, so but whatever technique he is making use of, bete, it involves cost. ठीक है, उसमें खर्चा आएगा. अगर मैं फोन कॉल भी करती हूँ तो इट वुड इन्वॉल्व सम कॉस्ट. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, जब हमने क्लास इंचार्ज से डाटा कलेक्ट कर लिया तो इट वुड नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट. ये जो डाटा है ये क्योंकि सेकेंडरी डाटा ने कलेक्ट किया, किसी और पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, सो उसको हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई भी कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है. ठीक है. न्यूज़पेपर से आपने मेरे को डाटा कलेक्ट करके दे दिया, ऑब्वियसली इससे आपकी कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई है. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. नाउ लेट्स डिस्कस what are the different methods of collecting primary data. By that time I'm unmuting Himanshu, he had one question. There are different methods of collecting primary data. We have categorized them into 3 categories: personal interviews, information through questionnaires and schedules, telephonic interviews. So let's focus on first one, personal interviews. First method of collecting data, making use of personal interviews, is direct personal इन्वेस्टिगेशन मेथड. बेटे ये वो मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेटर और इंफॉर्मेंट में डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल, मुझे आपके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं रोल नंबर वाइज मैंने आपको अपनी चेयर पे बुलाया और आपसे आपका डाटा कलेक्ट कर लिया. इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट पर्सनल investigation method, right? Direct personal method is that method in which the data is personally collected by the investigator from the informant by establishing face-to-face contact, okay, with the informant. So rest we will be discussing tomorrow. My other students, they have started coming, right? Anyone having any doubt? I see one student has raised hand.